in English grammar to practice. Practice only can make you perfect. So I'll read out some common errors. I'll make the font sizes bigger. So try. Yes. Well, these are exercises. Some of these exercises, they will help you in understanding how we can improve our English through practice. Look at this word, grow. These flowers grow up very quickly. This is not appropriate. Better would be these flowers grow very quickly. When I grow, I'll be a doctor. Instead of this, speak, when I grow up, I'll be a doctor. देखिए आप एक जगह grow up यूज करना है, एक जगह grow. It's all matter of practice. Pick up. We picked up flowers in the garden. गलत है. We picked flowers in the garden. Another sentence. The naughty boy picked a stone. गलत है. The naughty boy picked up a stone. To pick flower means to pull them away with the fingers. To pick up means to lift from the garden. So the naughty boy picked up a stone. Picked नहीं होगा. Picked up a stone. Deal with, deal in. This book deals in common error. गलत है. This book deals with common error. A bookseller deals with books. गलत है. Bookseller deals in books. Next. Interfere. Don't interfere with my private business. Don't interfere in my private business. Don't interfere in. With नहीं आएगा यहाँ पे. और अब देखते हैं interfere with का example. Paul is always interfering in the equipment. गलत है. Paul is always interfering with the equipment. यहाँ with आएगा. Interfere in means to concern yourself with something. Or interfere with means to do some damage. किसी को नुकसान पहुंचाना. Interfere with. अब borrow और lend का फर्क देखिए आप. I want to lend a book from you. मैं आपसे एक किताब उधार लेना चाहता हूं. I want to lend a book from you. गलत है. I want to borrow a book from you. और lend का will you please borrow me a book? गलत है. सही है. Will you please lend me a book? क्या आप मुझे एक किताब उधार देंगे? तो will you please lend me a book? Will you please lend me a book? अब ये सही हो गया. क्योंकि ये क्वेश्चन है इसलिए will को हम पहले काम में लेंगे. Will you please lend me a book? आप will की जगह can भी इस्तेमाल कर सकते हो, may भी इस्तेमाल कर सकते हो. Steal and rob. Someone has robbed all her money. गलत है. Someone has stolen all her money. Robbed होता है कोई लूटने वाला मामला. Some man stole a bank. गलत है. Some man robbed a bank. क्योंकि ये बड़ा काम है तो यहाँ पे rob आएगा.
revenge, avenge. I must avenge myself. गलत है. I must take revenge for what he did. I must take revenge for what he did. पहला सेंटेंस गलत है. I must avenge myself for what he did to me. ये गलत है. Convince, persuade. अभी एक गलत सेंटेंस देखिए. I am persuaded of Robin's innocence. I am persuaded of Robin's innocence. ये गलत है. सही सेंटेंस होगा I am convinced of Robin's innocence. तो परसुएड और कन्विंस का फर्क समझिए. परसुएड मतलब किसी को समझाना. कन्विंस मतलब कोई व्यक्ति खुद उसको समझे. रिफ्यूज, डिनाई. सारा डिनाइड टू टेक द मनी. गलत है. सेंटेंस है सारा रिफ्यूज टू टेक द मनी. सारा रिफ्यूज टू टेक द मनी. डिनाई नहीं आएगा यहां पे. बट मैं ये बोलूं कि मुझे पानी भी नहीं पानी के लिए भी मना कर दिया, तो उसके लिए रिफ्यूज नहीं आएगा, डिनाई आएगा. आई वॉज डिनाइड वाटर. आई वॉज डिनाइड इवन ड्रिंकिंग वाटर. तो इनका इस्तेमाल में फर्क आप देखिए. आप जॉन रिफ्यूज दैट ही वुड डू इट. गलत सेंटेंस है. सही सेंटेंस क्या होगा? जॉन डिनाइड दैट ही हैड डन इट. John denied that he had done it. To refuse means to take what is offered or not to do. Refuse means not to take. Refuse means not to take. To deny means to answer in negative way. प्लीज फॉर आस्क फॉर थैंक. ये कंफ्यूजिंग वर्ड देखिए. आई प्लीज हिम टू डू मी ए फेवर. आई थैंक्ड हिम. राइट. आई asked him. ये भी संभव है. I asked him to do me a favor. I thanked him for his lovely present. अब एक और वर्ड देखिए. could, was able to. Because Laura worked hard so she could finish the job in time. ये गलत है. Because Laura worked hard she was able to finish the job in time. तो यहां टेक्निकली तो कुड सही है, लेकिन कॉमन यूजेस के आधार पर आपको यहां पे was able to इस्तेमाल करना है, कुड का इस्तेमाल नहीं करना. दोबारा देखिए सेंटेंस. बिकॉज लॉरा वर्कड हार्ड शी कुड फिनिश द जॉब इन टाइम. तो इसका सही सेंटेंस होगा बिकॉज लॉरा वर्कड हार्ड शी वाज एबल टू फिनिश द जॉब इन टाइम. अगला सेंटेंस देखिए. लर्न और टीच का फर्क. टीच मतलब पढ़ाना, लर्न मतलब सीखना. ग्राहम लर्नड अस हाउ टू प्ले हॉकी. ग्राहम taught us how to play hockey. लर्न नहीं आएगा यहां पे. क्या आएगा? taught. विन एंड बीट. विन और बीट का फर्क देखिए आप. वी हैव ऑलवेज वन योर टीम. गलत है. वी हैव ऑलवेज बीटेड योर टीम. The ship drowned in the ocean. गलत है. The ship sank in the ocean. अब ड्रोन और सैंक का फर्क देखिए आप. The ship sank in the ocean.
ड्रोन का इस्तेमाल करते हैं लिविंग थिंग्स के लिए, और नॉन लिविंग थिंग्स के लिए हम सिंक या सैंक। अब सी और लुक का फर्क देखिए। नील वॉज सीइंग आउट ऑफ द विंडो, नील वॉज लुकिंग आउट ऑफ द विंडो। सीइंग नहीं आएगा। सी का मतलब है टू नोटिस विद द आईज, लुक का मतलब है टू डायरेक्ट, look is to direct the eyes in order to see. I looked up and saw the plane. मैंने आंखें ऊपर की और हवाई जहाज को देखा, तो I looked up and saw the plane. अब यहां पे look और see का फर्क देखिए आप। hear और listen का फर्क देखिए। I was hearing her CD, गलत है, I was listening to her CD. I was listening to her CDs. To listen to may mean to think carefully about what someone says. तो listen to आता है, hear to नहीं आएगा। अब आते हैं remember और remind का फर्क। Please remember me to give it back, ये गलत है। सही सेंटेंस होगा प्लीज रिमाइंड मी, मुझे याद दिलाना। याद दिलाने के लिए क्या वर्ड यूज करेंगे? रिमाइंड। लीव और लेट गो का फर्क। लीव द अदर एंड ऑफ द स्ट्रिंग, गलत है, सही होगा लेट गो ऑफ द अदर एंड ऑफ द स्ट्रिंग। ठीक है, लेट गो ऑफ द अदर एंड ऑफ द स्ट्रिंग। टेक और बाय का फर्क। आई वेंट टू द बेकर्स टू टेक ब्रेड, गलत सेंटेंस है। आई वेंट टू द बेकर्स टू बाय ब्रेड। टेक और बाय का फर्क समझिए। बाय मतलब खरीदना, टेक मतलब उठाना। टेक आउट, टेक ऑफ, दोनों का फर्क समझिए। क्रिस टुक आउट हिज हैट, गलत है, क्रिस टुक ऑफ हिज हैट। कोई चीज पहनी हुई है उसको उतारने के लिए टेक ऑफ। तो पुट ऑन मतलब पहनना और उसको उतारना, टेक ऑफ। flown for flowed, the river has flown over। तो गलत सेंटेंस है, द रिवर हैज फ्लोड ओवर इट्स बैंक्स। द रिवर हैज फ्लोड ओवर इट्स बैंक, राइट। तो फ्लोन, फ्लोन इज पास्ट पार्टिकल ऑफ फ्लाई। फ्लोन क्या है? फ्लाई की थर्ड फॉर्म है। फ्लोन का मतलब है उड़ना, और पानी का फ्लो उसका सेकंड फॉर्म क्या होगा? फ्लोड। फ्ली, फ्लड, फ्लड इज फॉर्मल, वी स्टिल यूज इट टू मीन फ्ली मतलब भागना। फ्लोट, फ्लोटेड, फ्लोटेंट, जैसे पानी है वो फ्लोट करता है, शिप फ्लोट्स ऑन वाटर। फॉल और फेल का फर्क देखिए। जॉन फॉल डाउन, गलत सेंटेंस है, सही सेंटेंस होगा जॉन फेल डाउन एंड ब्रोक हिज लेग। फाउंड और फाइंड का फर्क देखिए। रूसी ट्राइड टू फाउंड हर लॉस्ट बैग, गलत है, रूसी ट्राइड टू फाइंड। जब आपने पास्ट टेंस यूज कर लिया सेकेंड फॉर्म ट्राइड में, तो फिर दोबारा सेकेंड फॉर्म की जरूरत नहीं है, फाइंड ही आएगा।
तो रूसी ट्राइड टू फाइंड हर लॉस्ट बैग, रूसी ट्राइड टू फाउंड नहीं होगा। वेरी टू, इट्स टू हॉट इन रोम, गलत है, इट्स वेरी हॉट इन रोम। टू मतलब अत्यधिक। इट्स नाउ वेरी हॉट टू प्ले फुटबॉल, गलत सेंटेंस है। सही सेंटेंस होगा इट्स नाउ टू हॉट टू प्ले, यानी इतनी गर्मी है कि खेल नहीं सकते। इट्स टू हॉट टू प्ले। वेरी और मच का फर्क देखिए। ही इज अ मच स्ट्रांग मैन, गलत है, ही इज अ वेरी स्ट्रांग मैन। इट ही इज अ मच इंटरेस्टिंग बुक, इट्स अ मच इंटरेस्टिंग बुक, गलत है, इट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग बुक। लेकिन मच कहां आता है, देखिए, ही इज वेरी स्ट्रांगर, गलत है, ही इज मच स्ट्रांगर। यूज वेरी विद एडजेक्टिव्स एंड एडवर्ब्स इन पॉजिटिव and with present particles used as adjectives. use much with comparatives, जब कंपैरेटिव वर्ड हो तो क्या यूज करिए, मच, और पास्ट पार्टिकल हो तो क्या यूज करिए, मच। अब टू मच और वेरी मच का फर्क देखिए। सी लाइक्स द सिनेमा टू मच, गलत सेंटेंस है, सी लाइक्स द सिनेमा वेरी मच। प्रेजेंटली, एट प्रेजेंट। अब ये दोनों का फर्क देखिए। हिज अंकल इज इन लंदन प्रेजेंटली, गलत सेंटेंस है, हिज अंकल इज इन लंदन एट प्रेजेंट। हिज अंकल इज इन लंदन एट प्रेजेंट। यहां आप प्रेजेंटली का इस्तेमाल करेंगे, गलत हो जाएगा सेंटेंस। स्केर्सली, रेयरली। राम रेयरली कम्स टू सी मी, सही है, लेकिन राम स्केर्सली कम टू सी मी, गलत हो जाएगा। स्केर्सली और रेयरली दोनों का मीनिंग सिमिलर है, बट सेम नहीं है, दोनों का फर्क समझिए। रेयरली मीन्स नॉट ऑफन, स्केर्सली मीन्स not quite. I had scarcely finished when he came. I had scarcely finished when he came. यानी मैंने अपना काम जस्ट फिनिश किया ही था जब वो आया। यहां रेयरली नहीं आएगा, यहां स्केर्सली आएगा। लेटली और Instead, excuse me, sir. हाँ जी, So instead of scarcely, can we use barely? नहीं, दोनों एकदम अलग है। हाँ, barely you can use. I had barely finished when he came. Barely, B-A-R-E-L-Y, barely is correct. Lately or late. Last night I went to bed lately, गलत है, last night I went to bed late. Lately एकदम अलग वर्ड है। ऑपोजिट ऑफ अर्ली इज लेट, नॉट लेटली। लेटली मीन्स इन रीसेंट टाइम्स। आपको कहना हो कि आजकल वो लेट आता है या आजकल वो नहीं आता है, तो आप ये कह सकते हो लेटली ही इज नॉट कमिंग। आई हैवंट बीन देयर लेटली, मैं अभी इन दिनों वहां नहीं गया। आई हैवंट बीन देयर लेटली, लेटली मतलब आजकल। मैनी और मच का फर्क। माई ब्रदर हैजंट मैनी मच बुक्स, गलत सेंटेंस है, माई ब्रदर हैजंट मैनी बुक्स। इसी तरह मच, इज देयर So मैनी, too many. टू मैनी, he has he has too many options. too many मतलब अत्यधिक। Yes, sir. हाँ, too many can be used.
मच, इज देयर मनी डस्ट, गलत सेंटेंस है, इज देयर मच डस्ट। मैनी आता है काउंटेबल के लिए, मच नॉन काउंटेबल चीजों के लिए। ईच और एवरी, ईच और एवरी ऑलमोस्ट सिमिलर है, दोनों करीब करीब एक जैसे ही इस्तेमाल होते हैं, ईच और एवरी। हिज हर फर्क क्लियर है, नो नीड टू एक्सप्लेन। ओल्डर एल्डर सिमिलर हैं, कई बार गलतियां हो जाती है, बाकी दोनों सिमिलर हैं, अक्सर हम एक दूसरे की जगह इस्तेमाल कर लेते हैं इनको। द गर्ल इज एल्डर देन दैट वन, गलत है, क्योंकि एल्डर हम भाई बहन इस तरह से आपस में करते हैं। अननोन लोगों के लिए एल्डर नहीं ओल्डर का इस्तेमाल करिए। दिस गर्ल इज द एल्डेस्ट ऑफ ऑल, गलत है, अगर यहां केवल बहनों की तुलना होती तो एल्डेस्ट काम में आ जाती, लेकिन बहनों की नहीं, दूसरी लड़कियां हैं तो एल्डेस्ट का काम नहीं आएगा। दिस गर्ल इज ओल्डर देन वन, दिस गर्ल इज ओल्डेस्ट ऑफ ऑल। और एल्डर भाइयों के लिए क्या आएगा, एल्डर। माई ओल्डर ब्रदर गलत है, माई एल्डर ब्रदर। माई ओल्डेस्ट ब्रदर गलत है, माई एल्डेस्ट ब्रदर। सम और एनी, लुइस हैज गॉट एनी मिल्क, गलत सेंटेंस है, लुइस हैज गॉट सम मिल्क। एनी, दे आरंट सम बुक्स, गलत सेंटेंस है, सही सेंटेंस होगा देयर आरंट एनी बुक्स। जब आप नॉट लगा रहे हो तो एनी आएगा, सम नहीं आएगा। सम मतलब कुछ, एनी मतलब शायद कुछ भी नहीं। सम को हम अफर्मेटिव फ्रेजेस में काम में लेते हैं और एनी नेगेटिव। लेस और फीवर, ये बहुत लोग गलतियां करते हैं। दे हैव लेस बुक्स देन आई हैव, दे हैव लेस बुक्स देन आई हैव, गलत सेंटेंस है, दे हैव फ्यूअर बुक्स देन आई हैव। या लेस नंबर ऑफ बुक्स कर सकते हो यहां पे आप, दे हैव लेस नंबर ऑफ बुक्स देन आई हैव। पर खाली बुक्स लिखोगे तो दे हैव फ्यूअर बुक्स। लेस डिनोट्स अमाउंट, क्वांटिटी, डिग्री, वैल्यू, फ्यूअर डिनोट्स numbers. We may use less water, less food, less money, less education, लेकिन जहां काउंटेबल चीजें होंगी वहां हम फ्यूअर, फ्यूअर फ्रेंड्स, फ्यूअर लेटर्स, ये काउंटेबल चीजों की। लेकिन हम लेस देन 5, लेस देन 6 बोलते हैं, यहां पे फ्यूअर देन 5 नहीं बोलते, ठीक है। दिस और दैट का फर्क देखिए। लुक एट दिस डॉग, गलत सेंटेंस है, लुक एट दैट डॉग क्रॉस द स्ट्रीट। दिस, हम दिस का इस्तेमाल करते हैं जो एकदम एकदम पास में हो, और दूर है तो दैट। दिस इज यूज्ड टू इंडिकेट समथिंग फिजिकली क्लोज टू द स्पीकर, राइट। दिस इज अ लवली सॉन्ग, राइट। तो दिस जो पास में है, दैट जो दूर है। हाई और टॉल का फर्क देखिए। माई एल्डर ब्रदर इज 6 feet हाई, गलत है, माई एल्डर ब्रदर इज 6 feet टॉल। जनरली वी यूज टॉल विद पीपल, लोगों के लिए टॉल वर्ड काम में लेते हैं, और उसके ऑपोजिट होता है शॉर्ट। यूज हाई फॉर रेफरिंग टू ट्रीज, बिल्डिंग, माउंटेन,
तो आपको बिल्डिंग के बारे में बात करनी है तो टॉल नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? हाई, और उसका ऑपोजिट होगा लो। हाई और लो, और लोगों के लिए बात कर रहे हैं, इंसानों के लिए बात कर रहे हैं तो टॉल, शॉर्ट। अब ब्यूटीफुल और हैंडसम का फर्क देखिए। He has grown into a beautiful young man. गलत सेंटेंस है। He has grown into a handsome young man. लड़कों के लिए हैंडसम इस्तेमाल करते हैं, लड़कियों के लिए ब्यूटीफुल। We usually say man is handsome or good looking. Or for women, we use beautiful, lovely, good looking or pretty. सिक और इल का फर्क देखिए। He has been sick for over a year. गलत सेंटेंस है। He has been ill for over a year. To be ill means to be in bad health. Ill का मतलब खराब स्वास्थ्य। To be sick means to vomit. We sometimes use sick idiomatically to mean feeling ill. The smell made me sick. We can use sick before certain noun. The sick room, the sick note, the sick leave. ill leave नहीं बोलेंगे। अब कोई बीमारी के लिए लीव, छुट्टी ले रहा है तो क्या बोलेंगे? मेडिकल लीव बोल दीजिए, सिक लीव बोल दीजिए, ill लीव नहीं बोलेंगे। We use plural noun the sick to mean ill people. When the sick on the street of Birmingham. Sick on the street मतलब खूब सारे बीमार लोग जो सड़कों पर है। क्लियर और क्लीन का फर्क देखिए। You should keep your hands clear. गलत है। You should keep your hands clear. गलत सेंटेंस है। सही सेंटेंस क्या होगा? You should keep your hands clean. क्लियर और क्लीन का फर्क देखिए आप। Clean is opposite of dirty. Clear means transparent, unclouded. Clear water, बिल्कुल साफ पानी। यहाँ क्लीन वाटर नहीं बोलेंगे, क्लियर वाटर। क्लियर स्काई, क्लीन स्काई नहीं बोलेंगे, क्लियर स्काई। एंग्री, सॉरी का फर्क देखिए। आई वॉज एंग्री टू हियर दिस। आपके बारे में सुन करके बड़ा बुरा लगा। आई वॉज एंग्री टू हियर ऑफ हर डेथ। गलत सेंटेंस है। सही सेंटेंस क्या होगा? आई वॉज सॉरी टू हियर फॉर हर डेथ। सॉरी इज द ऑपोजिट ऑफ ग्लैड। खुश, मैं खुश हूं, उसका ऑपोजिट क्या होगा? सॉरी, आई एम सॉरी। एंग्री मीन्स एनॉयड, enraged. He was angry when a boy hit him. एंग्री का मतलब annoyed होना है। सॉरी और एंग्री का फर्क समझिए। कस्टम का फर्क, कस्टम वर्ड देखिए। The Chinese have strange habits. गलत सेंटेंस है। The Chinese have strange customs. तो कस्टम यानी परंपराएं, हैबिट इंडिविजुअल व्यक्ति की आदत। हैबिट बिलोंग्स टू इंडिविजुअल, कस्टम बिलोंग्स टू सोसाइटी, कल्चर। कॉज ऑफ, रीजन ऑफ देखिए फर्क। व्हाट्स द रीजन फॉर अ सैंडस्टोन? गलत सेंटेंस है। सही सेंटेंस होगा व्हाट्स द कॉज ऑफ सैंडस्टॉर्म। व्हाट्स द कॉज ऑफ सैंडस्टॉर्म। तो यहां रीजन फॉर नहीं आएगा। अब रीजन फॉर कहां आएगा? यू हैव ए गुड कॉज ऑफ कमिंग, यू हैव अ गुड रीजन फॉर कमिंग, यू हैव अ गुड रीजन फॉर कमिंग। यहां रीजन फॉर आएगा। Scene and scenery. The TV crew arrived at the scene. Scenery गलत है। सही सेंटेंस होगा The TV crew arrived at the scene. और scenery, the scene in crisp Cyprus is beautiful.
गलत सेंटेंस है द सीनरी इन साइप्रस इज ब्यूटिफुल। सीनरी इन साइप्रस, ये सही है। सीन रेफर टू पर्टिकुलर प्लेस, सीनरी refers to general appearance of the country. Don't use scenery in plural. Center और middle का फर्क देखिए। Stand in the middle of the circle, गलत है सेंटेंस। Stand in the center of the circle. ट्रैवल और जर्नी का फर्क देखिए। Our travel to Wales was lovely. गलत सेंटेंस है, सही सेंटेंस होगा Our journey to Wales was lovely. फुट और लेग का फर्क देखिए। I hurt my foot, गलत सेंटेंस है I hurt my leg. फिंगर और टो का फर्क देखिए। I hurt a finger of my right foot, गलत सेंटेंस है I hurt a toe in my foot. Fingers are hands, toes are foot. पैरों में जो है उनके लिए toes, हाथ में जो है उसके लिए fingers. पोएट्री और पोएम का फर्क देखिए। I have a poetry to learn, गलत सेंटेंस है I have a poem to learn. मुझे एक पोएम याद करनी है I have a poem to learn. I have a poetry to learn नहीं है, poetry is form of literature. कॉस्ट और प्राइस का फर्क देखिए। What the cost of this watch, गलत सेंटेंस What the price of this watch. क्योंकि कॉस्ट उसको बनाने में लागत क्या आए वो कोई नहीं जानता। मार्केट में जो रेट पर कोई चीज बिकती है उसको प्राइस बोला जाता है, वो कॉस्ट नहीं है उसकी। कॉस्ट अलग है, कॉस्ट खाली मैन्युफैक्चरर को पता होती है। हाँ, ये आप कह सकते हो हाउ मच डज इट कॉस्ट। हाउ मच डज इट कॉस्ट मतलब इसका एमआरपी क्या है, इस आइटम का प्राइस क्या है। तो हाउ मच डज इट कॉस्ट, क्योंकि आपकी कॉस्ट यानी उसकी एमआरपी। एयर और विंड का फर्क देखिए। स्ट्रॉन्ग एयर ब्लू हर हैट अवे। स्ट्रॉन्ग एयर गलत सेंटेंस है स्ट्रॉन्ग विंड, चलती हुई हवा के लिए विंड। स्ट्रॉन्ग विंड ब्लू हर हैट। ग्राउंड और फ्लोर का फर्क देखिए। व्हेन आई एंटर्ड द रूम आई सॉ हिम ऑन द ग्राउंड, गलत है व्हेन आई एंटर्ड द रूम आई सॉ ए बुक ऑन द फ्लोर। ऑन द फ्लोर, फ्लोर आएगा। फ्लोर इज द पार्ट ऑफ द रूम ऑन विच वी वॉक। कमरे में जो नीचे जगह है उसको हम फ्लोर बोलते हैं। ग्राउंड इज आउटसाइड द होम, घर के बाहर जो खुला एरिया है उसको ग्राउंड बोलते हैं। प्लेस और रूम का फर्क देखिए। इज देयर एनी प्लेस फॉर मी ऑन द बस, गलत सेंटेंस है इज देयर रूम फॉर मी ऑन द बस। क्या बस में मेरे लिए जगह है? इज देयर रूम फॉर मी ऑन द बस। तो जगह के लिए यहां पे रूम आएगा न कि प्लेस। Don't use place in the sense of room, right? Organ और instrument का फर्क देखिए। What other organ can you play? गलत सेंटेंस है What other instrument can you play? Organ is a particular musical instrument used in some churches. तो organ नहीं काम आएगा, instrument word काम आएगा। डैमेज, द फायर कॉज्ड मैनी डैमेजेस, गलत है द फायर कॉज्ड मच डैमेज।
The plural form of damages denotes money paid. Damages का मतलब होता है हर्जाना, और डैमेज नुकसान का प्लूरल डैमेज ही रहेगा. डैमेजेस यानी हर्जाना, इंश्योरेंस कंपनी जो भुगतान करती है उसको हम बोलते हैं डैमेजेस. वर्क. टुडे आई हैव मैनी वर्क्स. वर्क का प्लूरल फॉर्म वर्क ही रहता है, वर्क के आगे एस नहीं लगता. टुडे आई हैव लॉट ऑफ वर्क टू डू. आई हैव मैनी वर्क्स गलत है. प्लूरल फॉर्म वर्क्स मीन्स अ फैक्ट्री. वर्क्स का मतलब होता है एक फैक्ट्री. और राइटिंग्स. वर्क्स का मतलब क्या है? अब मान लीजिए शेक्सपियर ने कोई किताबें लिखी हुई है, उनको हम बोलेंगे वर्क्स. तो वर्क्स का मतलब कोई फैक्ट्री या किसी की लिखी हुई किताबें. तो वर्क्स अलग है, वर्क अलग है. स्कूल बिल्ड्स गुड कैरेक्टर. गलत है. स्कूल बिल्ड्स गुड कैरेक्टर. कैरेक्टर्स नहीं होगा. स्कूल बिल्ड्स गुड कैरेक्टर्स गलत है. कैरेक्टर्स नहीं होगा, कैरेक्टर होगा. कैरेक्टर का फुल फॉर्म कैरेक्टर ही रहेगा. हेयर, हेयर का भी फुल फॉर्म हेयर ही रहेगा. दैट मैन हैज लॉन्ग हेयर्स. गलत सेंटेंस. दैट मैन हैज लॉन्ग हेयर. एस नहीं आएगा. इसी तरह ब्रेड्स. ब्रेड्स नहीं होता, ब्रेड ही होता है. ब्रेड्स आर सोल्ड. गलत है. ब्रेड इज सोल्ड. इसी तरह फिश के आगे एस एस नहीं लगेगा. प्रोग्रेस. प्रोग्रेस के आगे एस नहीं लगेगा. टॉम हैज मेड ग्रेट प्रोग्रेसेस. गलत है. टॉम हैज मेड ग्रेट प्रोग्रेस. कोई एस नहीं आएगा. थंडर और लाइटिंग का फर्क समझिए आप. देयर वाज थंडर्स एंड लाइटिंग्स. गलत है. देयर वाज थंडर एंड लाइटिंग. सही है. When only one thing is meant, we say a clap of thunder and a flash of lighting. थंडर और लाइटिंग के आगे एस नहीं लगता. ये अपने आप में प्लूरल है. थंडर को एक थंडर आपको बताना है या एक लाइटनिंग बतानी है आपको, तो आप करिए वन क्लैप ऑफ थंडर या वन बोल्ट ऑफ लाइटनिंग. मशीनरी के आगे एस नहीं लगता. दे आर यूजिंग न्यू मशीनरीज. गलत है. दे आर यूजिंग न्यू मशीनरी. एस नहीं लगेगा. मैथमेटिक्स वर्ड के साथ क्या आएगा? सिंगुलर आएगा, प्लूरल आएगा? आंसर है सिंगुलर. मैथमेटिक्स आर नॉट इजी. गलत सेंटेंस है. मैथमेटिक्स इज इजी. मनी के साथ सिंगुलर आएगा, प्लूरल आएगा? ऑल हर मनी आर कैप्ट. गलत सेंटेंस है. ऑल हर मनी इज कैप्ट. इसी तरह न्यूज. न्यूज के साथ भी सिंगुलर वर्ड ही आएगा. न्यूज इज गुड. न्यूज आर गुड नहीं होता. न्यूज इज गुड. डैमेज के आगे एस नहीं लगता. फायर कॉज्ड मैनी डैमेजेस. गलत है. फायर कॉज्ड मच डैमेज. और डैमेजेस का मतलब होता है इंश्योरेंस कंपनी से मिलने वाला हर्जाना. So dear students, keep making lot of practice. Best wishes.